Good morning, students. Welcome back to the class 11 subject business study, chapter number 1 nature and the purpose of business. As today we will cover up the second part of classification of business activity. As first part we have completed as an industry, and today we will go with the commerce, the next topic of that same classification, commerce, and we will see the role and the functions, role or functions of commerce in this today's video. Today we are going with the lecture number 5. So let's begin with the topic commerce. What is commerce exactly? So the commerce is a wide term consists of all those activities which are necessary for sales, transfer or exchange of goods and services. As you know that industries are the ones which creates the product, and commerce helps that by providing the facilities of selling, transferring or exchanging of goods and services. As I have already mentioned, what is trade? Trade means selling and buying of goods and services. So commerce also helps all those activities which are relevant to sales, to transfer or exchange of goods and services. So it provides a necessary link between producer and consumer to ensure proper distribution of goods. कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है ना जिसमें हम लोग लिंक क्रिएट करते हैं प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक. अगर प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर की बात जब हम लोग करते हैं तो प्रोड्यूसर मीन्स द मैन्युफैक्चरर who produce that product, and that product has been finally completed to sell out to the customers. So प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर के बीच में जितने भी लोग आते हैं उन लोगों के साथ में एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट किया जाता है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करने का एक ही मकसद होता है कस्टमर को ऑन टाइम प्रोडक्ट पहुंचाना. सो यहाँ पे प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर की बात की गई है, तो हम लोग लेटर ऑन और भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देता हूँ. प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट्स बनाता है उसको होलसेलर खरीदते हैं बल्क में. Wholesaler purchase the goods in a bulk, and then they produce that product into small quantities, and that small quantities purchased by the retailers, and retailers will do arrangement in their shops, and they sell out that product to the customers. These are a chain or distribution channel for selling goods and services. तो commerce एक तरह के से लिंक क्रिएट करता है प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर्स के बीच में, और उसके अंदर मिडल लेवल के जो मिडल मेंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एक चैनल को कंप्लीट करने में. इन कॉमर्स second point is commerce basically aims to ensure supply of goods at the right time in a right quantity and in a right time. यहाँ पर कॉमर्स एक चीज़ एश्योर करता है कि जो आपका प्रोडक्ट जो है ना वो सप्लाई जो आप कर रहे हो वो राइट टाइम पे राइट प्लेस पे और राइट क्वांटिटी में पहुंच जाए. क्वांटिटी के अंदर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैज टू बी डिस्पैच ऑन टाइम एट पर्टिकुलर प्लेस. आपको ऑर्डर्स जो मिलते हैं वो ऑर्डर्स को ऑन टाइम रेगुलर इंटरवल पे आपको पहुंचा देने चाहिए. तो इसमें कॉमर्स आपको हेल्प करता है by making their supply goods at the right time, right place, and right quantity. In this way, commerce ensures free and smooth exchange of removal of hindrance or obstacle in a way of exchange. अब यहाँ पर एक हैंडरेंस वर्ड भी यूज किया गया है तो उसका मीनिंग भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं. कॉमर्स बाय प्रोवाइडिंग सप्लाई of goods at the right time, right place, right quantity, they make sure that the transaction or exchange of goods are been flowing smooth and free in the exchange field. आप प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाते हो तो जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो रुकावटें हैं वो रुकावटों को वो स्मूथली हैंडल कर लेता है. The hindrance may in respect of person, place, time, risk, finance and information. अब हिंडरेंस जो है वो आपका एक ऑब्स्टेकल है. तो ऑब्स्टेकल कौन से टर्म्स में हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन पर्सन के बेस पे हो सकता है, प्लेस के बेस पे हो सकता है, टाइम बेस हो सकता है, रिस्क बेस हो सकता है, फाइनेंस बेस हो सकता है और इंफॉर्मेशन बेस हो सकता है.
Hindrance means delay or obstructions to something or someone. डेफिनेशन के मीनिंग भी मैंने रखे हुए हैं, लेकिन हैंड्रेंस को आपको समझने की जरूरत है। हैंड्रेंस मीन्स ऑब्स्ट्रैकल और डिले, जिसके वजह से हमें डिले हो सकता है, इसको हम लोग हैंड्रेंस कहते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू रोल्स और फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। रोल्स ऑफ फंक्शंस ऑफ कॉमर्स के अंदर आपके पास 6 हैंड्रेंस है। वो हैंड्रेंस को हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये आपको समझना है, commerce play a very important role by removing the following hindrance in some of exchange of goods and services। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर जो रुकावटें आती हैं या जो डिले होता है या जो ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स आते हैं, उसको कॉमर्स के अंदर से आपको रिमूव करना है। तो कॉमर्स एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील्ड है जहाँ से हम लोग ये सारे हैंडल्स को हटा सकते हैं या डिले या ऑब्स्टेकल को हटा सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट हैंडरेंस, हैंडरेंस ऑफ पर्सन। पर्सनल, हम पर्सन हैं, ह्यूमन बींग्स को भी बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे पहला डेफिनेशन के बेस पे आपको दिया हुआ है, दिस हैंडरेंस अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। कंज्यूमर और कस्टमर आर सेम वर्ड, सो here it has been mentioned that hindrance of person, delay in or obstacle of persons are been due to lack of contact and communication। आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं होते, बहुत लोगों के साथ बात नहीं होती, तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो आपके कस्टमर तक पहुंचता नहीं है। तो क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि आपके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है या प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स नहीं है, इसलिए आपका प्रोडक्ट आपका पहुंच नहीं पाता है कस्टमर के पास। सो इसको हम लोग हैंडल कैसे कर सकते हैं? कॉमर्स रिमूव्स द हैंड्रेंस थ्रू ट्रेड। अब ये हैंड्रेंस जो है, इसको निकाला कैसे जाता है? निकाला जाता है बाय ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है? सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेलिंग और बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कंसीडर्ड एज ट्रेड। तो ये ट्रेड पॉसिबल तभी है जब आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज मार्केट क्रिएट करते हो। यहाँ पे वही वर्ड यूज किया है, ट्रेड प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज मार्केट where buyers and sellers can contact each other। मुझे खरीदना है, सामने वाले को बेचना है, तो हम लोग प्रॉपर मार्केट में चले गए। तो मेरे को खरीदना है तो मैं खरीद सकता हूँ, और वो बेचना है, उसको बेचना है तो वो बेचेगा। अल्टीमेटली हमारे बीच में कॉन्टैक्ट बन जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम्पल और भी लेना है ट्रेड के रिलेटेड, तो फ्लिपकार्ट भी एक चैनल है जिससे आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हो प्रोड्यूसर से। आपको अगर कोई मोबाइल खरीदना है तो आपने फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, फ्लिपकार्ट पे आपने ऑर्डर किया, तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, ऑन बिहाफ ऑफ यू वो कंपनी को बताएगा कि आपको मोबाइल खरीदना है, और वही मोबाइल आपके घर तक आ जाता है। आपको नॉमिनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन आप एक प्रॉपर चैनल के साथ चल रहे हो, तो ये भी प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल है। आप कॉन्टैक्ट बनाते हो सीधा कंपनी के साथ में विद द हेल्प ऑफ चैनल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज हैंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब हैंड्रेंस ऑफ प्लेस क्या है वो भी देख लीजिए। दिस हैंड्रेंस अकर्स ड्यू टू ज्योग्राफिकल सेपरेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर्स। आपका जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में कहीं मिलता ही नहीं है, लेकिन इंडिया के एक कोने में मिलता है जो नॉर्मली आसाम की साइड में है। आप आसाम तो नहीं जाओगे उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो उस प्रोडक्ट को आपके लोकेशन में लाना है, तो कैसे लाओगे? विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन कैसे होगा? आप कांटेक्ट करोगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो लोग क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको उसकी नीड है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय गिविंग अपॉर्चुनिटीज, द प्रोड्यूसर नीड्स टू मेक हिज गुड्स अवेलेबल टू कस्टमर हु आर स्कैटर्ड इन द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। हम क्या कर सकते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग हमारे प्रोडक्ट को आसाम तक लिमिट नहीं करेंगे, आसाम के अलावा सारी कंट्री के अंदर सब जगह हम अपना प्रोडक्ट स्टैब्लिश कर सकते हैं बाय गिविंग प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट, by giving proper channel, by giving proper communication, by giving proper transportation facility, we can expand our business all over India। तो कॉमर्स क्या करता है? कॉमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशन प्लेस का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करता है। बाय प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कॉमर्स रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ प्लेसेस। ट्रांसपोर्ट मूव्स गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आसाम का जो प्रोडक्ट है वो गुजरात आ सकता है,
गुजरात का प्रोडक्ट साउथ में जा सकता है, लाइक आंध्र प्रदेश में जा सकता है। आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट जो है वो दिल्ली जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो ये ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, प्रोड्यूसर की जगह से प्रोडक्ट लोड करता है और मार्केट के अंदर सेल करने के लिए रख देता है, तो नॉर्मली सबके पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है। नेक्स्ट इज प्लेस हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब हिंड्रेंस ऑफ टाइम मतलब आपका प्रोडक्ट तैयार है लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं है, तो आप क्या करोगे, वो प्रोडक्ट को आप स्टोर करने की कोशिश करोगे या उसको वेयर हाउस में रखोगे, राइट टाइम पे आप उसको निकाल के मार्केट में बेचोगे। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हर कंपनी वही करती है, हर रोज प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, वो ऐसा तो नहीं करेगी कि प्रोडक्ट्स बंद कर दे। अगर प्रोडक्ट बंद कर दिया तो फिर बाद में वापस स्टार्ट करने में शायद डिफिकल्टीज आ जाए और आपके जो प्रोडक्शन बंद है उसका कोई फायदा और ले सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंडल्स ऑफ टाइम को कैसे हैंडल कर सकते हैं। दिस हैंडल्स अकर्स ड्यू टू टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। और ये टाइम गैप का प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, मैं प्रोडक्ट बनाता जरूर हूँ लेकिन कस्टमर्स उसको परचेज टाइम के गैप के बेस पे लेते हैं और हर रोज नहीं परचेज करते। व्हाट दे डू, एग्जाम्पल अगर कोलगेट का ले, तो कोलगेट जो है वो आप एक बार लेते हो, एक महीने में अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है तो 15 डेज में भी खत्म हो जाए। लेकिन अगर 4 या 5 लोग हैं तो एक कोलगेट नॉर्मली, कोलगेट पेस्ट जो होता है वो नॉर्मली 1 मंथ 1.5 मंथ चलता है। तो आप वो प्रोडक्ट एक महीने या 1.5 महीने बाद में ही वापस खरीदोगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो टाइम गैप है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग स्टोरेज में रखते हैं या तो वेयर हाउसिंग में रखते हैं। तो ये एक तरह का हैंडरेंस को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसको हम लोग स्टॉक होल्डिंग भी कह सकते हैं या होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स एंड गुड्स विच आर टू बी सोल्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, ये भी हम कह सकते हैं। ऐसा स्टोरेज या ऐसे वेयर हाउस जहाँ पे हम प्रोडक्ट रखते हैं, जब टाइम आएगा तो उस टाइम पे हम लोग वो स्टॉक को मार्केट में उतारेंगे और मार्केट में उतारने के बाद में कस्टमर को बेच भी देंगे। तो हैंड्रेंस ऑफ टाइम का प्रॉब्लम जो है उसको अगर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करने के लिए आपको स्टोरेज एंड वेयर हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एज एन प्रोड्यूसर। यहाँ पे कस्टमर्स को बेनिफिट देने के लिए हमको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, तो हमें करना भी चाहिए। सो नेक्स्ट हैंड्रेंस इज हैंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब रिस्क को कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं, बाय टेकिंग इंश्योरेंस। अब हैंड्रेंस ऑफ रिस्क क्या है, ऑब्स्टेकल क्या आता है, हमारा प्रोडक्ट चोरी हो गया, हमारे प्रोडक्ट के अंदर आग लग गई या एक्सीडेंट हो गया, प्रोडक्ट डैमेज हो गया। तो ये सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग किस तरह से एश्योर कर सकते हैं कि वो बच जाए, या हमारा जो नुकसान है उसको नुकसान कैसे हम लोग बचा सकते हैं, बाय टेकिंग इंश्योरेंस ऑफ दैट गुड। उस गुड्स का या उस प्रोडक्ट का हम लोग अगर इंश्योरेंस ले लेते हैं तो चोरी हो जाए, जल जाए, घूम जाए या उसको कुछ और हो जाए, मतलब डिफेक्टेड निकले, तो वो डिफेक्टेड प्रोडक्ट का इंश्योरेंस हमारा है तो वो इंश्योरेंस के बेस पे रिकवरी हो सकती है। इसी को कहते हैं हैंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब नेक्स्ट पार्ट जो आपको दिया है हैंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। अब हैंड्रेंस ऑफ फाइनेंस क्या है, हैंड्रेंस ऑफ फाइनेंस मतलब पैसे की जरूरत पड़ जाना। तो पैसे की जरूरत को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, दिस हैंड्रेंस अकर्स ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल टू अंडरटेक द अबव एक्टिविटीज। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप कैपिटल कहाँ से ला सकते हो। एग्जाम्पल, आपको प्रोडक्शन क्रिएट करनी थी, एक नया इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप पैसा कहाँ से ला सकते हो। तो पैसा जो है वो नॉर्मली बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूट से हम ले सकते हैं। यहाँ पे वर्ड क्लियर किया गया है, कॉमर्स रिमूव्स दिस हैंड्रेंस थ्रू बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, दे प्रोवाइड द रिक्विजिट कैपिटल टू कैरी ऑन द वेरियस एक्टिविटीज। अलग अलग एक्टिविटीज के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पैसे की जो नीड है उसको फुलफिल कैसे किया जाता है, विद द हेल्प टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अगर इंस्टीट्यूट से अगर हम लोग हेल्प लेते हैं तो इंस्टीट्यूशन हमें मनी के रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हैंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कस्टमर को हम लोग इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वही चीज आपको देखनी है। दिस हैंड्रेंस अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्ट अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर। आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर को पता ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट की खासियत क्या है या प्रोडक्ट से हमें क्या फायदा होगा, ये किसी को पता ही नहीं। तो इधर क्या होता है कि यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है,
कस्टमर को पता ही नहीं होता कि वो कौन से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे और कौन से नहीं। एडवर्टाइजमेंट एक सोर्स है जिससे कस्टमर को पता चल जाता है कि मार्केट में ऐसा भी प्रोडक्ट अवेलेबल है जो उसके यूजफुल है। सो इसीलिए यहाँ पर टाइटल भी मैंने रखा हुआ है एडवर्टाइजिंग। Advertising make it possible for producers and traders to inform customer about the goods and services available in the market. With the help of advertisement, अब advertisement दोनों टाइप की हो सकती है, ऑन डोर ऑफ डोर, दोनों साइड से हो सकता है, आउटडोर इनडोर इस तरह से भी हो सकता है। इनडोर मतलब टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट करना, आउटडोर मतलब बाहर बैनर्स लगाना, फिर बाहर पैम्पलेट्स बेचना, स्टिकर लगाना, चिपकाना, फिर बाहर वॉल्स के ऊपर हम लोग नोटिस लगाते हैं, उस तरह से एडवर्टाइजमेंट भी लगाते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर प्रोवाइड करना। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग तभी ही क्रिएट कर सकते हैं जब आप एश्योर हो कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट खरीदना ही है। कस्टमर अगर वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू थोड़ा बहुत अट्रैक्शन ग्रैब कर सकता है। अट्रैक्शन ग्रैब होगा तो प्रोड्यूसर और ट्रेडर के पास जाके वो परचेज जरूर करेगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम लोग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कराते हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि हैंड्रेंस क्या होता है और हैंड्रेंस के साथ में हम लोग उसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। सो पहले से स्टार्ट करते हैं। तो आपको खाली इंफॉर्मेशन देने के लिए ठीक है, अगर पर्सन रिलेटेड इश्यू है, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल रिलेटेड इश्यू है, तो आप ट्रेड के थ्रू आप वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर प्लेस रिलेटेड इश्यू है, जोग्राफिकल इश्यूज है, तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन से रिमूव कर सकते हैं। हैंड्रेस ऑफ टाइम अगर है, टाइम की वजह से कोई इश्यू है, तो हम लोग स्टोरेज एंड वेयर हाउस की हेल्प से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। रिस्क रिलेटेड इश्यू है तो हम लोग इंश्योरेंस लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइनेंस रिलेटेड इश्यू है तो हम लोग बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प लेके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हैंड्रेस अगर इंफॉर्मेशन रिलेटेड है तो हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस रोल एंड फंक्शंस ऑफ कॉमर्स वेरी इफेक्टिवली। In next lecture, we will see aids to trade, what is aids to trade and what is trade. We will understand this in deep after you understand this. That's it for today. Thank you.